Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So student, all of you know very well what you had learned in this lesson. First, you had learned recall exercise. In this topic, we had learned write what fraction the shaded parts of the whole. Here I have given some diagram. From this diagram, how many parts we are shaded here. So look at here example number 1. In this example, how many parts of that rectangle? Rectangle have total numbers of 6 parts. From the 6 parts, we are shaded 3 parts. So here fraction is coming 3 by 6. Then in question number 2, we had learned how many parts are not shaded. So now look at here. This is the rectangle. That rectangle have a total numbers of 6 parts. From the 6 parts, how many parts are not shaded? So how many parts are not shaded? 1, 2, 3. So we are writing 3 in the numerator and 6 is writing in the denominator. So fraction is coming 3 by 6. Then after we had learned the question number 3, shade the parts of each whole is indicated. Here giving some fractions of this diagram and we are shaded the parts. So 5 divided by 6. So 6, that diagram have a 6 parts. From the 6 parts we are fill up 5 parts of the color. So here fraction is coming 5 by 6. Then after we had learned the question number 4. Write the numerator and denominator. Here giving some fraction. From this fraction we are writing which is the denominator and numerator. Look at question number B. Here I have one example, 4 divided by 9. From the 4 divided by 9, 4 is the numerator and what here writing 4. So 4 is upside. So 4 means this is numerator and 9 is the denominator. Then after we had learned the question number 5, filling the blanks. In this topic we had learned, look at here example number 1, 1 divided by 2 of 6. 1 divided by 2 of 6. So now we want answer. So we will cut off and in the place of off we are write multiplication sign. Then we are multiply 1 into 6. So 1 into 6, 6 and divided by 2. Now we divide 2 divided by 6. 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है 3. So like this exercise we had done. Then after we had learned the equivalent fraction. So now look at this diagram. There have a 3 rectangles. So first rectangle I have divided into the 2 equal parts. Then this rectangle is divided into the equally 4 parts. And this rectangle is divided into the equally 8 parts. From the 2 parts, 1 part is the shaded. From the 4 parts, 2 parts is the shaded. And from the 8 parts, 4 parts are the shaded. So now when we are looking the 3 diagrams, so shaded parts is looking equally, means we are say that 1 divided by 2 equal to 2 divided by 4 and 2 divided by 4 equal to 4 by 8. This is the equivalent fraction. इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन है वो क्या है, एक दूसरे से इक्वलेंट है. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे क्या है, सर्कल है. फर्स्ट सर्कल में क्या किया है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये क्या किया है, सिंगल लिखा है. यहाँ पे कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 सर्कल है. यहाँ पे भी 6 सर्कल है. लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 2 सर्कल का ग्रुप किया हुआ है. तो यहाँ पे कितना आ गया है, डिनोमिनेटर में हमने 3 लिख दिया क्योंकि हमने सर्कल, जो ये सर्कल है इसके कितने पार्ट्स किए हैं, 3 पार्ट्स किए, 1 2 3. सो हमने डिनोमिनेटर में क्या किया है, जितने इक्वली पार्ट्स किए उतने. फिर 2 जो ग्रुप है उसमें से 2 ग्रुप है उसमें हमने क्या किया है, सर्कल को कलर किया है. तो कितने ग्रुप को शेडेड किया है, 1 और 2. ऐसे 4 सर्कल को शेडेड किया है लेकिन वो क्या है, ग्रुप में है. तो एक ग्रुप में कितना है, 2 है. तो हमने
ये क्या किए हैं, 2 लिखा है क्योंकि हमने 2 ग्रुप किया है उसको कलर किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप नहीं किया है तो टोटल नंबर्स ऑफ सर्कल हमने कितने लिख दिए, 6 लिख दिए, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी सर्कल, 6 सर्कल, एंड हाउ मेनी सर्कल वी आर शेडेड 1 2 3 4, सो वी आर राइटिंग हियर 4 बिकॉज वी आर शेडेड 4 सर्कल। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। Then after we had learned the exercise 8.1. Then after we had learned the finding equivalent fraction by using the division and multiplication method. ये हमने पढ़ा है, by division and multiplication method को यूज करके हमने क्या किया है, इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। Now look at one example. The next 3 equivalence fraction of 1 divided by 5. हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 है उसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 के साथ, देन 4 के साथ। सो हमें क्या मिल जाएगा, 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 5 है उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10। देन 1 डिवाइडेड बाय 3 है, 1 डिवाइडेड बाय 5 है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 15। देन 1 डिवाइडेड बाय 5 है उसको हमने क्या किया है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिल गया है, 4 डिवाइडेड बाय 20। ये हमें क्या मिल गए, 3 नेक्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल गए थे। देन लुक एट हियर एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करके किया है और यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करके किया है। द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 18 आर, 6 डिवाइडेड बाय 18 का हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना था तो यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज किया है। 6 और 18 दोनों को 2 के साथ डिवाइड किया है। ऐसा नंबर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों वही नंबर के साथ डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हमने 2 लिया है क्योंकि 2 6 के साथ भी डिवाइड होता है, 18 के साथ भी डिवाइड होता है। जब हमने 6 और 18 को 2 के साथ डिवाइड किया है तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया है, 3 डिवाइडेड बाय 9। देन 3 डिवाइडेड बाय 18 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया है क्योंकि 6 3 के साथ भी डिवाइड होता है और 3 18 के साथ भी डिवाइड होता है तो क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय 6 का इसका आंसर आ गया है 2 डिवाइडेड बाय 6। देन 6 डिवाइडेड बाय 18, इस यहाँ पे हमने 4 लिया है क्या, क्योंकि 4 6 के साथ भी डिवाइड नहीं होता है, 18 के साथ भी नहीं होता है। 5 भी 6 के साथ डिवाइड नहीं होता है, 18 के साथ भी डिवाइड नहीं होता था, हमने डायरेक्ट 6 लिया। 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है, 18 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। सो हमें 3 नेक्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या मिल गए हैं, 6 डिवाइडेड बाय 18 के, 3 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। दिस वी हैड लर्न ऑलरेडी। Then after I had learned the exercise 8.2, question number A, B, C and D. These also we had done our last class. Check for equivalence. यहाँ पे हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था, इक्वलेंट फ्रैक्शन को निकाला था। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाय 12 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों भी इक्वलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं हमें निकालना था। तो क्या किया था, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। मतलब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है, 24 मिलता है, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलता है। मतलब दोनों भी 24 आ गया है, मतलब ये क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। दिस फ्रैक्शन आर इक्वलेंस इफ यू क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर्स आर द इक्वलेंस। मतलब ये क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 12 है, 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो हमने एक इसका न्यूमरेटर लिया है और दूसरे इसका डिनोमिनेटर लिया है। एक इसका न्यूमरेटर और दूसरा इसका डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था, यहाँ पे इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने ये किया था।
So exercise 8.3 also we had done our last class. Now we will start our today's topic, fraction in lowest term. So now look at here, fraction in lowest term. A fraction is a lowest term if the only one common factor of the numerator and denominator is 1. अगर फैक्टर मतलब कोई नंबर है और उसका फैक्टर जो है वो क्या है, सिर्फ ओनली वन नंबर ही कॉमन फैक्टर आता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म. सो स्टडी इन द फॉलोइंग टेबल. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन पेज नंबर 118. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है. सो फर्स्ट लुक एट एग्जाम्पल 1, फ्रैक्शंस. ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 10. हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 10 है, उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, 5 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 एंड 5. फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर, सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर के फ्रैक्शन है, देन डिनोमिनेटर में, देन कॉमन, एंड वो लोवेस्ट टर्म है कि नहीं वो देखेंगे. सो फर्स्ट क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 10. ऑल ऑफ यू नो फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स लेसन में पढ़ा था. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मतलब 5 कौन से नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा. 5 इज द विच इज द नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. 5 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द कंपोजिट नंबर. हमने फैक्टर लेसन में पढ़ा था. प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर वंस एंड इटसेल्फ नंबर है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो हम यहाँ पे देखो 5 के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स ऑफ 5. 5 इज द प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 के फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5. क्या है फैक्टर, 1 एंड 5. ये हो गए न्यूमरेटर के. एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो 10 किस किस के साथ डिवाइड होगा, 1 के साथ डिवाइड होगा. 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर. 1 क्या है, सबका फैक्टर होता है, तो 1 फैक्टर से, देन 2. 10 को अगर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है. सो मतलब 10 का 2 फैक्टर्स हो गया, 2 फैक्टर्स है, और 5 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे हम फैक्टर निकाल के दिखाऊंगी, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे. 10 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1 तो फैक्टर्स है, 1 10 के साथ डिवाइड होता है, 1 10 जा 10, मतलब ये 1 फैक्टर हो गया. ठीक है, दूसरा फैक्टर 10 का क्या होगा, 2 के साथ, 2 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 2 5 जा 10, मतलब हमारा 5 भी 2 का फैक्टर्स हो गया है. देन अगर हम 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो मतलब 2 भी हमारा फैक्टर्स हो गए. मतलब 10 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 1 2 5 एंड 10. ये हमारे 10 के फैक्टर्स है. हमने फैक्टर्स लेसन में पढ़ा था फैक्टर कैसे निकालते हैं. मतलब 10 जो नंबर है वो किस किस नंबर के साथ डिवाइड होता है, तो 1 के साथ डिवाइड होगा, 2 के साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ डिवाइड होगा, और 10 के साथ डिवाइड होगा. मतलब 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 5 एंड 10. यहाँ पे 10 ने लिखा है, इटसेल्फ नंबर नहीं लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 5 लिखा है, और यहाँ पे 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 5 है. अभी दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, 1 एंड 5 दोनों में कॉमन है. हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए एक ही नंबर क्या चाहिए, कॉमन चाहिए. लेकिन यहाँ पे कितने नंबर्स कॉमन है, 1 2, मतलब 1 एंड 5 ये दोनों भी क्या है यहाँ पे कॉमन है. सो ये लोवेस्ट टर्म है क्या, नो. वेदर द फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म, नो, बिकॉज देयर हैव 2 फैक्टर्स. यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 फैक्टर्स है, एक 1 और ये दूसरा 5. अभी एग्जाम्पल नंबर 2, 3 डिवाइडेड बाय 7. ओके, सो 3 आल्सो प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं,
2, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। सो 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3 है। देन ये हो गया न्यूमरेटर का। अभी डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 7। ये 7 के फैक्टर्स निकल गए। अभी दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो जिस नंबर में 1 नंबर कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट टर्म। सो यहाँ पे 1 कॉमन है तो ये लोवेस्ट टर्म है, यस। सो ये क्या है, लोवेस्ट टर्म है। देन 3 डिवाइडेड बाय 12 है। 3 डिवाइडेड बाय 12 है। सो 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3 है। क्या है, 1 एंड 3 है। और 12 के फैक्टर्स क्या है, देखो यहाँ पे 12 के कौन से फैक्टर दिए, 1 के साथ 12 डिवाइड होता है, 2 के साथ होता है, 3 के साथ डिवाइड होता है, 4 के साथ डिवाइड होता है, 6 के साथ होता है, 12 के साथ डिवाइड होता है। तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स है। अभी अगर दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। सो ये लोवेस्ट टर्म है क्या, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 एंड 3 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। और हमें लोवेस्ट टर्म के लिए क्या कॉमन चाहिए, सिर्फ 1 नंबर ही हमें क्या चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड 3 डिवाइडेड बाय 12 आर नॉट अ लोअर टर्म्स, वेयर एज 3 डिवाइडेड बाय 7 इज द लोवेस्ट टर्म। 3 डिवाइडेड बाय 7 ये क्या है, लोवेस्ट टर्म है। ओके, सो ये हमारा हो गया था लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। To simplify a fraction means convert the fraction to its lowest term. सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन है उसको हमें कन्वर्ट करना है लोवेस्ट टर्म में। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउ लुक एट हियर। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लोवेस्ट टर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12 है। 6 डिवाइडेड बाय 12 है। 6 और 12 ये दोनों 2 के साथ डिवाइड होता है, यस। अगर हम दोनों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 हो गया है, मतलब हमें 3 डिवाइडेड बाय 6 हो गया है। भी ये लोवेस्ट टर्म आ गया है क्या, नहीं आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 6 है। अगर 3 और 6 लेंगे, ठीक है, अगर हम दोनों को क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 के फैक्टर क्या है, 1 3 है, और 6 क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये कंपोजिट है। 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर निकल जाएंगे। अगर हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है, 1 एंड 3 दोनों कॉमन आ रहा है, मतलब ये लोवेस्ट टर्म में आ गया क्या, नहीं आ गया। इसलिए हमने 3 डिवाइडेड बाय 6 को 3 के साथ डिवाइड किया। अभी दोनों को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 6 को। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 2। अभी यहाँ पे क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है, मतलब ये दोनों भी क्या आ गए हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आ गए। ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं, 1 ही एक की सिंगल फैक्टर होता है। और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 2, दोनों में कॉमन क्या आ गया, सिर्फ 1 आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। Divide the numerator and denominator by their common factors till 1 is left as a common factor. हमें क्या करना है, दोनों इसमें मतलब डिनोमिनेटर में अलग नंबर नहीं लिख सकते हैं और न्यूमरेटर में हम अलग नंबर नहीं ले सकते, हमें दोनों में भी सेम ही नंबर लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 12 है, तो हमने 6 और 12 दोनों को भी क्या किया है, 2 के साथ डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड नंबर लिया है। दोनों इसमें हम क्या लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं। जो नंबर हम न्यूमरेटर में लेते हैं वही नंबर हम डिनोमिनेटर में ही लेते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2।
सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 36 डिवाइडेड बाय 54। 36 डिवाइडेड बाय 54। अभी देखो 36 डिवाइडेड बाय 54 है तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 6 है, 4 है। 2 के डिवीजन के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट नंबर क्या चाहिए हमें, 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट डिजिट ये होता है, ये 2 के साथ डिवाइड होता है तो लास्ट डिजिट क्या है, 36 में 6 है और 54 में 4 है, मतलब ये 2 के साथ डिवाइड होगा। 36 और 54 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 18 आता है। और 54 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आता है, 27 आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 18 आ गया है, 27 आ गया है। 27 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। ये 2 के साथ डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो हम 18 और 27 को 3 के साथ भी डिवाइड होता है, 4 के साथ होता है क्या, नहीं होता है। हम देखेंगे 18 और 27 किस नंबर के साथ डिवाइड होता है, दोनों भी। सो 18 और 27 9 के टेबल में आता है। 18 डिवाइडेड बाय 9 एंड 27 डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। 18 को हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, 27 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिल गया है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन विच आर नॉट लोवेस्ट टर्म। हमें क्या करना है, लोवेस्ट टर्म निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन विच आर नॉट अ लोवेस्ट टर्म। सो नाउ लुक एट हियर, हमें क्या करना है, इसमें से कौन से लोवेस्ट टर्म नहीं है वो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। हम सॉल्व करेंगे नोटबुक में। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, 15 डिवाइडेड बाय 13। 15 डिवाइडेड बाय 13। नाउ 15 और 13 है। ठीक है, 15 और 13 ये दोनों 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, 30 तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर 15 और 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, यस 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15 और 3 10 15। अभी क्या आ गया यहाँ पे, 5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया है। अभी 5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया है तो ये लोवेस्ट टर्म में आ गया है क्या, नहीं आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जो 5 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आंसर आ गया है उसको हम, इसको 2 के साथ भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 4 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो हम दोनों को 5 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में 5 आता है। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 1 होगा। और 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा, 2 होगा। तो ये इसका फर्स्ट का हमारा लोवेस्ट टर्म क्या आ गया है, 1 डिवाइडेड बाय 2। देन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द 12 डिवाइडेड बाय 36। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, 12 डिवाइडेड बाय 36। नाउ ये दोनों भी 2 के साथ डिवाइड होगा। अगर हम 12 और 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ 2 के साथ तो डिवाइड होगा, यस 2 के टेबल में 12 आता है, 36 भी डिवाइड होता है। सो 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। और 2 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 18 आता है। कितना आता है, 2 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 आता है। चेक करेंगे, 2 1 2 और यहाँ पे 16 आ गया है, 2 8 कितना आ गया है, 18 आ गया है। अभी ये लोवेस्ट टर्म में आ गया क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 के साथ भी डिवाइड होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 18। 6 ये
6 के टेबल में आता है 6 और 6 18 6 के टेबल में भी आता है, तो हम क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 8 है उसको हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 और 18 दोनों भी क्या आता है 6 के टेबल में आता है। तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। सो सेकंड वाला लोवेस्ट टर्म हमारा क्या आ गया है 1 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। देन this is example number 2. Example number 3 4 5, which is example number 3 4 5। ये आपको क्या है होमवर्क है, ठीक है, या आपको करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पीरियड। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 3 4 और 5 कौन सा एग्जाम्पल है 3 4 एंड 5, ये आपको एग्जाम्पल क्या है होमवर्क है, आपको करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूँगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।